introduce karunga. So I'll do that in English since Maharaj will also be able to understand English. So we're very, very fortunate to have His Holiness Guru Prasad Maharaj with us today. So he has been serving in ISKCON for more than 50 years. And he has a very, very interesting background. He was a student of nuclear physics at the University of Texas and also Purdue. And during his university, he contacted the devotees, and then he went to serve in the army for 2 years in Panama. And there he became very, very inclined towards Krishna consciousness. And then he met Srila Prabhupada in 1976 in Mayapur, and he got initiated there, and he dedicated his full life since then to ISKCON. And he has been serving as a sannyasi since 1982, traveling all over the world and very, very difficult places. Many countries in Latin America where Maharaj is the governing body commission, and very, very difficult places. And Maharaj, I remember coincidentally when I was a student at the University of Texas, he was one of the first sannyasis in ISKCON I personally met in 1994. So I was so touched and inspired by his simplicity, by his knowledge, by his humility. And Maharaj showed me he used to drive, that time he used to drive alone for miles, thousands of miles from one center to another, all over the US and Mexico. He used to be driving alone in the car. So I was quite amazed that I was a sannyasi, he could drive so much and do so many things. So we are very, very grateful to Maharaj for his time here, and I would request him now to speak on the importance of having a temple and having such wonderful deities to serve. So I'll hand over the mic to Maharaj. Hare Krishna. First of all, I'd like to welcome the Honorable Minister Sudhanshu Trivedi and thank you very much for coming and being with us today. So, some people say, what is the need of a temple when God is everywhere? No. And the real need is, yes, God is everywhere, Paramatma, but He is not realized everywhere. And most people, especially in this age of Kali Yuga, even those who practice yoga, if you compare the practice of most modern day practitioners, after Bhagavad Gita, what is yoga, especially requiring a total abstention from any contact with the opposite sex, then we can see that modern day yoga is a far cry from what the Vedas have established. So, in the ignorance that we are surrounded by in Kali Yuga, the temples are very, very important. A place where people can come and remember their heritage, especially here in Bharat. This is the place where culture, where spirituality was born on this planet, and where it has thrived, where the Das Avatar appeared to again and again bring us back to the reality that we are Jivatma and that Krishna, the Supreme, is the eternal personality who expands into so many different incarnations for the benefit of the living entities. And especially here, so near Vrindavan, to have Sri Sri Radha Gopinath, Lalita Vishaka, to remind us of how fortunate we are here in Hastinapur, now Delhi, that
So this is the culture. And of course everyone knows to some degree, but modern society tries to keep us in a temporary reality of earning money and social interaction, and all these things. When, according to Vedic culture, just like we just saw a nice little cultural presentation of Brahma Samhita, real culture was not Netflix, it was dramas on Mahabharata and Ramayana, which would be performed in the temples. So this is the importance of a temple. This is the importance and why we go to the difficulty of building such a beautiful, artistically designed temple so that people are attracted. Krishna means the supremely attractive person. And that the most beautiful personality. And therefore, people are looking for beauty, because we're all looking for, as Sri Chaitanya Mahaprabhu has stated, Pratipadam Pradaminas Vadanam. Everyone at every step is looking for Krishna, looking for the Supreme, looking for Brahman. And but we find very poor substitutes. The best substitutes we have is family. And therefore, family is so dear to us, because that person or that object that represents the greatest the greatest object of affection or love or interchange of affection, then that becomes our worshipable object. So Krishna says in Bhagavad Gita that yo yo yam yam tanum bhakta shradharya chicham ichati tasya tasya chalam chadham, that he's warning us, be careful where you put your faith, because that faith will draw your attention and take you to that object. And he also warns us again, jayato vishayan pumsam, that whatever you meditate on, that will create attachment. So therefore we have created this beautiful temple and invited their lordship, Sri Sri Radha Gopinath, who are the pinnacle of beauty, to bring everyone's focus and attention back to the reality from which we all have come and have evolved, or in most cases involved, not evolved. We're evolving toward them. And this temple is therefore a institution of evolution, of spiritual evolution, of evolution of consciousness. So this is what we're doing today, to recognize this, and I'm so grateful to our honored guests that you have come, and also you will enlighten us with words of wisdom that will help everyone remember that this is the reality that we all are looking for. And unfortunately, so many of us have forgotten, or sometimes not forgotten, but we just don't have the time. Because modern society is based on, as Krishna says, based on temporary things and temporary achievements. And therefore the deity represents the eternal reality, which is the perfection of beauty, of knowledge, of renunciation, of fame, of every... the Supreme Lord is the maximum manifestation of everything that is desirable for the living entity. So anyway, I thank all of you for coming today and for this commemorating activity for our temple. And of course, everyone is welcome every day, every moment. We would love to have you. That's why we're here, to serve all of you, to serve this community, and bring spirituality back into the focus of humanity. Thank you all very much. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj, for reminding us of the real purpose of this temple,
from changing our consciousness or attachment towards temporary things to the most attractive personality, most permanent reality, the absolute truth, Sri Krishna. So महाराज ने बहुत अच्छे से समझाया हमें कि कैसे ये टेम्पल का एक मेन उद्देश्य है कि हमारे जो आसक्ति है, जो भौतिक चीजों, टेम्पररी चीजों की जो के प्रति आसक्ति है, उसको कैसे भगवान के प्रति हम ट्रांसफर करें। और इसके लिए जो हमें गीता और भागवतम से जो एजुकेशन मिलती है, so it is for that purpose this temple is there. So thank you very much, Maharaj. Now I would like to request हमारे जो zonal supervisor है, zonal secretary, sorry, महामन प्रभु जी, वो भी इस्कॉन में 50 साल से सेवा कर रहे हैं। He was in London in 1972 जब उन्होंने devotees से मिले, और तब से वो इस्कॉन में बहुत सारी सेवाएं की उन्होंने। वृंदावन में भी 10 साल वृंदावन टेम्पल के हमारे प्रेसिडेंट रहे, और अभी भी बहुत सारे स्टेट्स उनके अंडर हैं जो वो उनके सेक्रेटरी हैं। और प्रभु जी अभी एक बहुत सुंदर एक टेम्पल इंदौर में बना रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट भी हैं। सो प्रभु जी से वी वुड रिक्वेस्ट हिम टू से अ फ्यू वर्ड्स। ओम सतोमा सत्तगमः तमसोमा ज्योतिर्गमः मृत्युमा अमृतम गमः। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजनीय श्री धर्मदेव जी महाराज जी, पूजनीय श्री गुरु प्रसाद जी महाराज, और हमारे माननीय अतिथि डॉक्टर सिद्धांबू जी त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की सभा में। महाराज, may I speak in Hindi? Okay, so that most people will understand. Thank you. हरे कृष्णा। So आज जानते होंगे इस युग में इंडिया, हमारा भारत देश जो है, वर्ल्ड इकोनॉमी में नंबर 5वीं स्टेट पर है। इससे आगे होंगे अमेरिका, रशिया, चाइना और जापान। वर्ल्ड इकोनॉमी में 5वीं स्थिति है हमारी, लेकिन एक्चुअली हमारी जो वेल्थ है वो है हमारी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। कुछ वर्ष पहले श्रील प्रभुपाद जी 72 में लंदन में गए थे, तो एक रिपोर्टर ने बहुत थोड़ा चुनौती देकर, क्योंकि उन्होंने समझ के भारतीय लोग कुछ मांगने के लिए आते हैं, तो ऐसे रिपोर्टर ने प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य को पूछा, स्वामी जी आप किस मकसद से यहाँ, क्या आप कहने का यहाँ में पर्पस है? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मैं आप ब्रिटिश लोगों को वो चीज़ देने आया हूँ जो जिस समय आपने भारत को छोड़ा वो वहीं छोड़ाए, वो चीज़ नहीं लेकर आए। तो उसने पूछा, ये कैसी चीज़ थी? हम तो सब कुछ ले आए, चाहे कोहिनूर हो, और क्वीन विक्टोरिया के कोफर्स भरते रहे, यहाँ भारत में भूखमारी मरती रही, क्या ऐसी चीज़ है जो हम नहीं लेकर आए? प्रभुपाद जी ने कहा, वो चीज़ है भारत की संस्कृति, भगवद गीता, वो आप नहीं लेकर आए। अगर आप भगवद गीता लेकर आते और उनका भारत का कल्चर लेकर आते तो पूरे विश्व में आज शांति होती। ये जो अनरेस्ट है, वॉर जो है, वो नहीं होता। तो जैसे हमने कहा, इंडिया का जो रियल वेल्थ है वो है उसका आध्यात्मिक कल्चर। अनफॉर्चुनेटली हमारे को लगभग 1000 वर्षों से फॉरेन डोमिनेशन हो रहा है
चाहे मुगलों का हो, चाहे फिर उसके बाद ब्रिटिश लोगों का हो। ये 1834 की बात है कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन, शायद आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड मकॉली उसका नाम था, पर उनके ज़माने में उनको स्कॉलर माना जाता था। उन्होंने कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, आज भी रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा 1834 में कि मैंने पूरे भारत का टूर लगा चुका हूँ, मैं हर एक स्थान में भारत का देख चुका हूँ, मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला, मुझे एक भी चोर नहीं मिला, और वहाँ के लोग सब बहुत ऊंचे कल्चर के हैं, संस्कृति इतनी ऊंची है वहाँ में। और अगर हमको वहाँ में सक्सेसफुल होना, हमारा ब्रिटिश मिशन के लिए, ब्रिटिश डोमिनेशन के लिए, तो हमको उनका संस्कृति जड़ों से ही काटने ही पड़ेगी, नहीं तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये लॉर्ड मकॉले ने दी है स्टेटमेंट, आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। सो एनीवे, हमारा कहने का मतलब ये था कि भारत की संस्कृति इतनी ऊंची है और ये बढ़ाने का कार्य बहुत तेज़ी से, तीव्रता से चल रहा है, खासकर इस्कॉन के माध्यम से। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है प्रभुपाद जी के बारे में, और उनके प्रीडिसेसर प्राइम मिनिस्टर भी थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनका कहना था कि जो प्रभुपाद जी ने इस संसार में, इस दुनिया में किया है, ये अतुलनीय है, इट इज़ अ मिरेकल। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, और हम कहेंगे ये विश्व का शायद सबसे बड़ा चमत्कार होगा। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा है कि मैं जब भी किसी भी देश में जाता हूँ, वहाँ के लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी हों, उनके लिए मैं एक ही उपहार गिफ्ट के तौर पर लेकर जाता हूँ, वो है भगवत गीता। कुछ वर्ष पहले जब भी पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट ओबामा को मिले, भगवत गीता प्रेजेंट की उनको, और फिर जापान के प्रेसिडेंट को भी मिले तो भी भगवत गीता प्रेजेंट की। और मोदी जी के बहुत शुभ वचनों में उन्होंने ये भी कहा है बेस्ट गिफ्ट देने के लिए भगवत गीता है, और किसी के लिए भी बेस्ट गिफ्ट लेने के लिए भी भगवत गीता है। आज मैं मेरी वाणी को यहाँ आराम कर दूँगा, और स्पीकर्स हैं, और पूरे फिर से मैं डॉक्टर सिद्धांत त्रिवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मैंने उनके वीडियोस बहुत सी बार देखे हैं, देखता रहता हूँ, और हमारे धर्मदेव जी महाराज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी गृहस्थ होके भी कितने सालों से सेवा कर रहे हैं। सो ये एक और जो प्रमाण है कि whether you are सन्यासी और गृहस्थ, equal opportunity to make spiritual progress. और प्रभु जी is such a example of that he has been serving 50 साल से ज़्यादा प्रभु जी सेवा कर रहे हैं, और थैंक यू प्रभु जी के फॉर रिमाइंडिंग अस कि एक्चुअली हमारा रियल वेल्थ क्या है, राइट? हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक नॉलेज, दिस इज आवर ट्रू वेल्थ। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर रिमाइंडिंग अस। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर चीफ गेस्ट फॉर टुडे, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। Many of you already know him, many of you आप लोगों ने बहुत सारे उनके वीडियोस देखे हैं। He's a dynamic leader, speaker, intellectual.
बोलना था, लेकिन आप लोग ने तालियों से उससे ज्यादा ही बोल दिया। So, over to you. यहाँ मंच पर विराजमान हिज होलीनेस स्वामी गुरु प्रसाद जी, श्री HC महापाद प्रभु जी, रीजनल सेक्रेटरी, श्री सुंदर गोपाल जी, जोनल सुपरवाइजर, श्री रामभद्र जी, टेम्पल प्रेसिडेंट, श्री अच्युत हरि जी, टेम्पल इंचार्ज, श्री VN दास जो कि पहले हमारे बड़े पुराने परिचित रहे हैं, और महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी, और इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित सभी भक्त जन बहनों और भाइयों। As Swamiji, when he started this portion, I am deliberately speaking in English because I came to know that he is a nuclear scientist, and subsequently he has devoted his entire life for the cause of Krishna consciousness. And he also said that India is the land from where the spirituality emerged. So I would like to tell you that how spirituality emerged from India, from his branch, that is the nuclear physics. You know, you might have heard the word atom bomb. Atom bomb means when the nucleus is separated and the chain reaction starts, breaking off gradually the nucleus. But more powerful is hydrogen bomb. ये उस वाले हाइड्रोजन बम की बात नहीं कर रहे हैं जो अभी वो पटाखे वाला हाइड्रोजन बम. That is where two nucleus meet, and by fusion an enormous energy is created, and that forms hydrogen bomb. वैसे मैं ऑन द लाइटर नोट ये भी कह दूं, हाइड्रोजन बम अभी जो आप बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी के टाइम में बना था. इंदिरा जी के टाइम में जो हुआ था, that was not bomb. Officially government of India has said we have done only for peaceful purposes. But when in the 11th of May 1998 India conducted tests, we said we are the nuclear state. So that was the hydrogen bomb. This is the formula by which sun produces energy. Two nucleus of hydrogen fuses into helium, creates enormous energy. When chain reaction initiates, huge energy is created. So now you can understand, if the two nucleus of an atom fuses together and such an enormous energy is created, then can you imagine if your consciousness gets fused towards the supreme consciousness, such a big explosion will happen. And the huge vibration of energy will be available everywhere. तो इसलिए अगर भारत को देखना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडिया, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इंडिया, यू कैन फील इंडिया. इफ यू आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू फील दोज वाइब्रेशंस. अदरवाइज आप जाइए अजंता एलोरा से लेके बड़े बड़े मंदिरों तक और ताजमहल तक सब कुछ देख के चले आइए, आप भारत को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि भारत समझने की चीज है. और फिर स्वामी जी ने क्या कहा था, what is the need of temples? When that energy is produced from a exalted soul, like ट्रांसमीटर कहीं से ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल, तो जगह जगह के ऊपर टावर्स भी तो होने चाहिए टू फर्दर ऑगमेंट दैट सिग्नल. आई एम नॉट गिविंग दिस सिमिली टू डाउनग्रेड द स्पिरिचुअल थिंग, बट जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल एज A for apple is required for those people who are too much scientific these days. So that's why I want to say कि these type of temples, ये क्या होते हैं, ये उस चेतना के you can say radiating points होते हैं. And one more thing, as has been told, that here बच्चों को पढ़ाया भी जाता था. तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं होते थे. हिंदू धर्म में हर व्यक्ति के घर में मंदिर होता है. हमारे यहां कोई सामूहिक प्रार्थना का कोई ऐसी परंपरा नहीं है जैसी सीमेटिक रिलीजन्स में है. तो फिर मंदिर की आवश्यकता क्या थी? मंदिर की आवश्यकता दो कारणों से थी. मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती थी, तो वहां पे आपको एक वाइब्रेंट एनर्जी यू कैन फील,
And second thing, temples were the vibrant center of entire activities of society. जो मंदिर का पुजारी है वही शिक्षक होता था, मंदिर में ही आपको योग शिक्षक मिलता था, मंदिर में ही आपको वैद्य भी मिलता था, मंदिर में ही आपको ज्योतिषी भी मिलता था, मंदिर में ही आपको वास्तुशास्त्री भी मिलता था, मंदिर में ही आपको शास्त्रीय संगीत का गायक भी मिलता था। और आज जिसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कह रहे हैं, उस परंपरागत ज्ञान के प्रतीक भी मंदिर के प्रांगण में ही मिलते थे। तो मंदिर हमारे संपूर्ण ज्ञान का केंद्र होते थे। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि अभी स्वामी जी ने अपनी स्पीच में कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई पीपुल से व्हाट इज द नीड ऑफ गोइंग टू टेम्पल बिकॉज द कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर। डेफिनेटली कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर, बट हैव यू रीच टू दैट लेवल? जो लोग कहते हैं सभी जगह भगवान है तो मंदिर जाने की जरूरत क्या, तो मैं कहना चाहता हूं जहरीले सांप में भी भगवान है, और पागल हाथी में भी भगवान है, और बाघ में भी भगवान है। तो तुम उसको समान मान के चलते हो क्या? उसके बगल में खड़े हो, नहीं नहीं नहीं, तब तो मुझे डिफरेंस दिखाई पड़ता है। तो अगर कॉन्शियसनेस के उस लेवल पे पहुंच जाओ, तब ये कहो कि सब जगह भगवान है। और जब तक नहीं है तब तक भगवान जहां पे है उसको जाके मानने का प्रयास करिए। दूसरी बात जो अभी आपने कही, ड्यूरिंग अवर लॉन्ग फॉरेन सब्जुगेशन फ्रॉम मुगल रूल टू द ब्रिटिश रूल, एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब मैकॉले हैज डिस्ट्रॉयड अवर एंटायर बेसिक सिस्टम, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, कोई भिखारी नहीं मिला, कोई चोर नहीं मिला। उससे बड़ी बात मैं कहता हूं, जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते क्या है? कोई बेरोजगार नहीं मिला। मैं आपसे यह बात विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं, संस्कृत दुनिया की सबसे डेवलप्ड लैंग्वेज है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स है। और इसका प्रूफ क्या है? हम सब विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, सुना है, ललिता सहस्त्र नाम सुना है, हनुमत सहस्त्र नाम सुना है। आई चैलेंज, कैन यू टेल एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विच कैन हैव 1000 सिनोनिम्स ऑफ वन वर्ड और वन पर्सन? 1000 पर्यायवाची हो और उनमें से कोई भी दूसरी भाषा से नहीं लिया गया हो। तो यह दर्शाता है कि कितने शब्द हैं, मगर आपको एक शब्द संस्कृत में नहीं मिलेगा, बेरोजगारी। बेरोजगारी एक उर्दू का शब्द है जो फारसी भाषा से आया है, विच इज कम फ्रॉम पर्शियन। रोजगार के लिए संस्कृत में शब्द है व्यवसाय। बेरोजगार का इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट है। बेरोजगार इज ए उर्दू वर्ड विद अ पर्शियन ओरिजिन। संस्कृत में बेरोजगार शब्द का कोई भी पर्यायवाची नहीं है, कोई खोज के बता दे, क्योंकि बेरोजगारी तो होती नहीं थी। हम समृद्धि के उस शिखर पर थे जहां पर कोई भी व्यक्ति आजीविका से अलग नहीं रहता था। यह भी एक बात को दर्शाता है। और फिर हमारे दिमागों में कैसी बात भरी गई। अभी देखिए, कुछ दिन पहले दीपावली का पर्व गुजरा, तो वो लोग ये कहते थे, उसको थोड़ा कम करवा दीजिए, सीधे सर पे मार रहा है। तो देखिए, दीपावली में कुछ लोग किस बात को लेकर प्रोजेक्ट करते हैं? साहब, दिए जलाने से इतना वेस्ट हो जाता है, पटाखे चलाने से हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं, लुक फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हमारे यहां कहा जाता, भगवान राम आए तो अयोध्या के सारे निवासियों ने घी के दिए जलाए नहीं, एक दिया नहीं जलाया, दियों की पूरी कतार जलाई। दीपावली शब्द का मतलब था दीप मतलब दीपक, और अवली मतलब कतार, क्यू, सीरीज। अब आप कल्पना करिए, इसका मतलब हमारे देश में इतनी समृद्धि थी कि इतना प्रचुर मात्रा में घी होता था कि लोग अपने घर पे घी के दियों की कतार लगा सकें। यह हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए था, उसे ग्लानि में परिवर्तित कर दिया गया। और फिर यह भी समझिए, वो घी कहां से आता है? जहां सबसे प्रचुर मात्रा में दूध होगा तो दूध से दही बनेगा, दही से मक्खन बनेगा, मक्खन से घी बनेगा। और घी तो दूसरी जगहों पे होता ही नहीं था। आज भी आप वेस्ट में जाइए, वेस्टर्न कंट्रीज में, और 5 स्टार होटल में जब आप घी देखते हैं, या आज भी हमारे यहाँ के 5 स्टार होटल पे जाइए, तो वर्ड क्या लिखा रहता? क्लियर्ड बटर। क्योंकि उनके यहां फैट का कॉन्सेप्ट बटर के आगे है ही नहीं। अब दूसरी बात आई है, हमारे यहां कहा जाता है इंडियन फूड हैबिट्स आर बैड, बड़ा डीप फ्राइड होती है पूड़ी कचौड़ी और ये सब चीजें।
मैं पूछता हूं भाई साहब आपके पास डीप फ्राइड करने के लिए था कुछ क्या? क्योंकि डीप फ्राइड केवल घी में ही हो सकता है, डीप फ्राइड बटर में नहीं हो सकता। आपके पास एनिमल फैट था, एट दी मोस्ट बटर था, तो डीप फ्राइड आप कर ही नहीं सकते थे। और डीप फ्राइड जिस देशी घी में किया जाता था या सरसों के तेल में किया जाता था या जिसे कच्ची घानी का तेल कहते हैं, आज साइंस इस बात के कंक्लूजन में पहुंची उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो फूड हैबिट्स बैड नहीं थी। व्हेन यू हैव स्टार्टेड यूजिंग डालडा और वनस्पति घी इंस्टेड ऑफ देसी घी, वनस्पति घी क्या होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होता है। इसी अब जबकि देसी घी आप देखें गर्मी के दिनों में ऑटोमेटिक लिक्विड में दिखेगा एकदम, जबकि डालडा गर्मी के दिनों में भी लिक्विड में नहीं होता है। तो जो आपके बॉडी टेम्परेचर पे सॉलिड है वही जाके आर्टरीज में जमेगा, और जो बॉडी टेम्परेचर पे लिक्विड है वो क्यों आर्टरीज में जाके जमेगा? तो पहले आपने अपना मैन्युफैक्चर्ड आइटम हम पे थोपा, और जब उससे तरह तरह की डिजीज होनी शुरू हुई, आपने कहा तुम्हारी फूड हैबिट खराब थी, और हमने बड़े इजीली उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। हमारे यहां बहुत मीठा खाया जाता है, तुमने रिफाइंड शुगर लाए, उससे डायबिटीज आई, तुमने ये नहीं कहा कि रिफाइंड शुगर से प्रॉब्लम है, तुमने कहा इंडियन फूड हैबिट्स खराब है, मीठा बहुत खाते हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो इस्कॉन काम कर रहा है, तो जो कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा इज राइजिंग, एंड इट इज राइजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कहेंगे कैसे? जो हिंदू धर्म और वैदिक धर्म का कॉन्सेप्ट है, आज जैसे लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इंडिया में हिंदुइज्म, अरे इंडिया में छोड़िए, वर्ल्ड वाइड देखिए। 3-4 चीजें आपको बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया को पता ही नहीं है कि वो कैसे उस कॉन्शियसनेस के इन्फ्लुएंस में आते जा रहे हैं। नंबर 1, अभी जो स्वामी जी ने कहा कि अगर सबसे अच्छी चीज कोई देने वाली है तो वो गीता है। और जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने इन 2014 ऑन हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट टू अमेरिका, फर्स्ट फॉरेन विजिट तो उनकी भूटान में हुई थी, तो जब अमेरिका की फर्स्ट विजिट पे गए तो उन्होंने बैरक ओबामा को गीता भेंट की, और तब बहुत से लोगों के कलेजे पे सांप लौट गया। और वो क्यों लौट गया? क्योंकि आज 7 नवंबर है। 7 नवंबर 1966 को गोरक्षा आंदोलन के लिए जो संत लोग आंदोलन कर रहे थे, उन पे जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, उन्हीं के कलेजे पे सांप लौटा था, जब गोपालक भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश को, जिसके लिए क्या कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता गीता दुग्धामृतम महत। सभी उपनिषद गाए हैं, उसका सार जो है वो क्या है? वो है गीता। वो कैसे? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, जिसको धोने वाले ग्वाले भगवान कृष्ण हैं, और अर्जुन क्या है? बछड़े हैं। पार्थो वत्स सुधी भोक्ता गीता दुग्धामृतम महत, जो गीता रूपी अमृत दुग्ध मिल रहा है, सभी सुधी जन उसको पान कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात समझिए, आपने कभी भी हमारे यहां गाय की कोई प्रतिमा देखी होगी हिंदू धर्म में, तो गाय और बछड़ा साथ साथ होते हैं, गाय अलग नहीं है। वेस्ट में गाय अलग होती है, उसकी मूर्ति आपने अलग देखी होगी, कहीं फोटो देखी होगी। हमारे यहां गाय बछड़ा साथ है। इसमें भी क्यों कहा गया कि वत्स अर्जुन है, बछड़ा क्यों? जानते हैं क्यों? गाय का दूध मूलता बछड़े के लिए है, जो बछड़े से बचेगा वो हम लेंगे। और उसके अंदर भी एक साइंस का एंगल भी है। जब वो मूलतः बछड़े के लिए दूध देती है तो उसके माइंड में एक सकारात्मक वाइब्रेशन पनपता है। आप मशीन लगा के खींच लेंगे, जो वेस्ट में किया जाता है गाय से, तो उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिलेनियन मिलेगा, मगर वो सात्विक गुण नहीं मिलेगा जो बछड़े के माध्यम से गाय को धोकर प्राप्त करने में होगा। और आप सोचिए, अब मैं उसके एंगल पे आ रहा हूं, आपने शायद आज से 10-20 साल पहले किसी ने वर्ड नहीं सुना होगा, काउ कडलिंग। आज अमेरिका में काउ कडलिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी 15 मिनट के लिए आप गाय से जाके गले लगिए, और उसके लिए वो सर्टेन डॉलर्स चार्ज करते हैं, और उनका कहना है कि उससे आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है। अब आप आइए साहब, वैसे तो कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है,
साउथ के एक तमिलनाडु के मंत्री ने कह दिया था कि बीजेपी गोमूत्र वाले राज्यों में ही जीत सकती है। अब उन्हें यही नहीं पता है कि गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल पेटेंट है अमेरिका में, और उस पेटेंट का नंबर है 64100059। अब आप आइए, दुनिया कहती थी पहले 50 साल पहले कि साहब क्या तुम लोग बच्चों जैसी बात कर रहे हो, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम गाय के गोबर पे पड़े हुए हो, गाय के गोबर से कोई खेती वेती नहीं होती, अब थोड़ा इवॉल्व हो, साइंटिफिक बनो, मैकेनाइज्ड फार्मिंग यूज करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करो। आज 50 साल के बाद क्या कह रहे हैं? आ जाओ गाय के गोबर पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करो। अब आप आइए, सिर्फ आज से 50 साल पहले कहा जाता था अरे नॉन वेज खाना खाना चाहिए भाई, ये घास पत्ती खाने से कोई ताकत नहीं आती है, क्या वेजिटेरियन फूड के चक्कर में पड़े हुए हो। आज ऑल ओवर द वर्ल्ड वेजिटेरियन नहीं, वेगन का कॉन्सेप्ट आया। 25 साल पहले मैं अमेरिका गया था 2000 में, वेज बर्गर नहीं मिलता था, और वहां तो चिकन और मटन को भी वेज बोल देते थे। जब उनको बहुत समझाओ कि नो चिकन नो मटन, तो जानते क्या करते थे? बर्गर में से चिकन निकाल के आपको दे देते थे कि ये खा लीजिए। आज आप जाइए तो वेज बर्गर नहीं, वेगन बर्गर भी मिलता है। यह दर्शाता है कि दुनिया किस तरफ पहुंच रही है। अब अगले पॉइंट पे आइए, प्रधानमंत्री जी ने योग की शुरुआत की 2014 में, तो 177 कंट्रीज हैव नॉट सपोर्टेड दिस इन यूनाइटेड नेशन, दे बिकेम द सेकेंड प्रपोजर। एक तो होता प्रस्ताव का समर्थक करना, एक होता प्रस्तावक ही बन जाना। यूएन की हिस्ट्री में कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं था जिसमें 177 कंट्रीज बिकम द प्रपोजर ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, और उसमें 40 से अधिक मुस्लिम कंट्रीज थे। यह भी महत्वपूर्ण बात है। अब आप आइए, उसके बाद क्या हुआ? आज दुनिया के 177 देशों में जब कोई व्यक्ति योग के द्वारा अपना शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त करता होगा, तो समझ में नहीं आता भारत की कॉन्शियसनेस से इन्फ्लुएंस हो रहा है। आज आप सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो अब हमारे लिए इस बात को लेकर एक सेंस ऑफ इंफीरियरिटी नहीं रहनी चाहिए। योग हमारा है, हम ये नहीं कहते कि हमने पेटेंट कराया है, मगर अगर न्यूटन्स लॉ को न्यूटन्स लॉ कहा जाता है, जबकि ऐसा तो नहीं कि वो लॉ पहले काम नहीं कर रहे थे, वो तो नेचर्स लॉ है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आइंस्टीन थ्योरी कहा जाता है, हाइजेनबर्ग थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी को हाइजेनबर्ग थ्योरी कहा जाता है। तो हमें कहना चाहिए योग वेदों से निकला है, और जो छठ वैदिक दर्शन है, सांख्य न्याय वैशेषिक योग मीमांसा वेदांत, उसी में से एक योग है। इसलिए योग हमारा है, इस बात को कहने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। और योग में भी जो योगासन है जिससे आपको शारीरिक एक्टिविटी प्राप्त होती, ये तो बड़ा एलिमेंट्री लेवल की चीज है। जो पूरे अष्टांग योग में आप ऊपर तक जाएंगे, ये तो कुछ कुछ वैसा है जैसे अभी बच्चे को एबीसीडी सिखाई जा रही हो, उतने ही में दुनिया खुश हो रही है कि कितना बढ़िया योग है। सोचिए कि जिस दिन वो स्पिरिचुअल एलिवेशन के लेवल तक पहुंचेगी, तब दुनिया को और बेहतर समझ में आएगा कि हम कहां तक पहुंच रहे हैं। और फिर एक और चीज है जिसको दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, वो क्या? हमारे यहां मंदिरों में दिन में 2 बार भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी रिलीजन्स एंड ऑल दी कल्चर्स ऑफ द अदर कंट्रीज, किसी दूसरे धार्मिक केंद्र पे दुनिया में कहीं फ्री का खाना नहीं मिलता, बल्कि उल्टा तो वहां यह कहा जाता है कि देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच। इफ देयर इज ए फ्री लंच, देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। बट उसका जवाब कौन देता है? इस्कॉन टेम्पल ने दिया। कहां पे दिया? उसी अमेरिका की धरती पे दिया, जब स्टीव जॉब्स जो एप्पल का फाउंडर है, उसने कहा कि मेरी जिंदगी में एक दौर इतना बुरा आया कि मेरे पास इतने कम पैसे थे कि अगर मैं कमरा किराए पे लूंगा तो खाने के पैसे नहीं होंगे,
खाना खाने की व्यवस्था करूंगा तो कमरा नहीं रख सकता, तो उसने कहा कि मैंने एक ऐसी जगह पे कमरा किराए पे लिया जहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ 1-2 मील चलकर इस्कॉन का एक मंदिर था जहां दिन में 2 टाइम फ्री भोजन मिलता था, और मैंने जिंदगी के कई महीने वहां से गुजार के बताए। अब बताइए दुनिया को यह संदेश, ये हमारी कॉन्शियसनेस उभर के जा रही है। सबसे हाईटेक कंपनी, दुनिया की सबसे हाईटेक कंपनियों में से एक एप्पल, उसका फाउंडर जहां से प्रेरणा ले रहा है वो हमारी प्रेरणा। और उसके बाद अभी आपने देखा होगा स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल कुंभ मेले में आई थी और इतना प्रभावित हो गई कि उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण की और अपना नाम भी कमला देवी रख लिया। और क्यों? जैसे स्वामी जी जैसे लोग हु वाज वेल रेड एंड हैविंग सच ए गुड एजुकेशन फ्रॉम द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूएस एट द टाइम, बट क्या चीज है जो यहां पर अट्रैक्ट करती है? 66 करोड़ लोग कुंभ मेले में आए, 50 लाख विदेशी भी आए। 50 लाख लोगों को क्या मोटिवेशन? वो तो हिंदू नहीं थे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, मैं पूछना चाहता हूं, कोई गैर क्रिश्चियन कहता मुझे वेटिकन की यात्रा करनी है, तीर्थ यात्रा की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मुझे वेटिकन का केवल वो देखने जाना है। कोई गैर मुस्लिम कहता मुझे हज की यात्रा करनी है, मगर गैर हिंदू कहता है मुझे कुंभ में जाना है। और उससे बड़ी बात, अगर कोई दूसरी जगह कह दे जाना है, सबसे पहले कहा जाएगा कन्वर्ट हो जाओ। यहां कहा जाता आओ, कन्वर्ट होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, जब वो आते हैं तो द स्पिरिचुअल साइड ऑफ लैंड विच इज बीन मेंशन्ड बाय स्वामी जी, वो यहां क्या देखने को मिलता है? वेस्ट कहता है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सुख प्राप्त करना है तो क्या मिल जाए? पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे में सारा सुख है। कार्ल मार्क्स ये थ्योरी दी कि हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, जबकि हकीकत क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जहां पर है उस अमेरिका में कोई जाके किसी भी स्कूल कॉलेज में गोली चला दे रहा है। क्यों भाई, क्या परेशानी है तुम्हें? जो पुरानी फिल्म का डायलॉग था ना, तुम्हारे पास रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, क्या नहीं है भाई? मां नहीं है। क्योंकि मां क्यों नहीं है? 48% बच्चे सिंगल पेरेंट्स के द्वारा पाले जा रहे हैं, यानी या तो केवल अकेले बाप पाल रहा है या केवल अकेले मां पाल रही है। और मां भी मां हाफ मदर और हाफ फादर होते हैं। हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की एक फ्रेंड है अमेरिका में, उसने जानते किसके लिए इनवाइट किया उनकी बेटी को? कि मेरे फादर की मैरिज है, आइएगा। क्योंकि फादर और मदर दूसरी शादी करते रहते हैं। इस कारण से मन में जो असंतोष का भाव है, वो जो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो पैसा नहीं दे सकता। दूसरी थ्योरी आई सिगमंड फ्राइड की, उन्होंने कहा नहीं, पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शारीरिक सुख अगर मिल जाए, फिजिकल प्लेजर, तो आपको सबसे बड़े सुख की प्राप्ति हो जाएगी। फिर एक आए फ्रेंच फिलोसोफर, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने ये कहा नहीं, इससे भी बड़ी एक चीज है नेम एंड फेम। तुम्हारी खूब प्रसिद्धि हो जाए, दुनिया आपको जानने लगे, तो आपको बड़ी खुशी होगी। यानी वो कहते हैं या तो पैसा या फिजिकल प्लेजर या फेम। मगर जब वो भारत में आते हैं और आके कुंभ मेले को देखते हैं और नागा सन्यासियों को देखते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं इनको क्या चाहिए? इनको पैसा नहीं चाहिए, इनको कोई फिजिकल प्लेजर नहीं चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा, नागा सन्यासियों के पास कोई जाए और मान लीजिए उन्होंने कुछ आपको दे दिया और आपका काम हो गया, नेक्स्ट टाइम आप थैंक्स देने जाएं तो वो डांट के भगा देते थे, कभी कभी गाली बक के भगा देते थे। तो आपको लगता था ये कैसा बिहेवियर है, हम तो इनको ग्रेटिट्यूड के लिए आए, इन्होंने मुझे डांट के भगा दिया। इसलिए डांट के भगा दिया जाता था ताकि आप उनके, अगर आप वो आपकी एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप उनका प्रचार करेंगे, तो फिर वो कीर्ति के मोह में फंस जाएंगे, तो वो नेम एंड फेम में भी नहीं पढ़ना चाहते। तो फिर उनको लगता फिर इन्हें क्या मिल रहा है, तो उन्हें जानते क्या मिलता है कि वो सुख खोजें भौतिकता में, वेस्ट के लिए वो सुख खोजें भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और यहां पर आकर मार्क्स भी फेल हो जाते हैं, मैक्स वेबर भी फेल हो जाते हैं और सिगमंड फ्राइड भी फेल हो जाते हैं। ये वो है जो भारत को वास्तविक स्टेज पे आगे ले जा रही है। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा
कि अगर भारत दुनिया का स्पिरिचुअल सेंटर है तो फ्यूचर में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड है, उसमें हम स्पिरिचुअल इंडिया को कहां देख रहे हैं। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चैट जीपीटी, आजकल एआई का दौर बहुत चल रहा है। चैट जीपीटी वाले जो ओपन एआई है, उसके फाउंडर सैम ऑल्टमैन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आपकी दुनिया में बड़ी वाहवाही हो रही है कि आपको वो सब कुछ पता है एआई को जो दुनिया को नहीं पता है। कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप मानते हैं पर दुनिया नहीं मानती, आपको लगता है, या दुनिया को समझ में नहीं आया और आपको समझ में आया है। तो सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है 27 दिसंबर 2022 का 2:40 का, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक मानसिक कीड़ा है ना कि भारत के बारे में कोई अच्छी चीज बता दो तो सोशल मीडिया पे कूद पड़ते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये अच्छा नहीं था, हमारे अंदर कुछ अच्छा नहीं था, हम तो सब खराब थे। वही जो स्वामी जी ने कहा, मैकाले का माइंडसेट ऐसा दिमाग में भरा हुआ है। जानते हो क्या लिखता है उस ट्वीट में? एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्म। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं तो समझता हूं, पर मुझे लगता अभी दुनिया में बहुत से लोग नहीं समझ पाए। मगर मैं सैम ऑल्टमैन जी से भी कहना चाहता हूं, वहां नहीं समझ पाए होंगे, भारत में आइए। गीता के द्वारा भगवान कृष्ण ने आपको यह समझाया है कि जो जो आप अपने अंदर जाते हैं, आत्मन के अंदर जाएंगे, ब्रह्म का साक्षात्कार वैसे ही होता है जिसे बिहारी जी ने कविता की एक पंक्ति में कहा है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यो ज्यो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। भगवान कृष्ण के रंग में जितना डूबते चले जाएंगे उतना आपका चित्त निर्मल होता चला जाएगा। अब कोई कहेगा ये तो फिलॉसफी है। और लास्ट में मैं ये भी बात कह दूं, हमारे यहां साइंस और स्पिरिचुअलिज्म इस कदर मिला हुआ है कि लोगों को समझ ही में नहीं आता है। देखिए, लाइट जो है वो वेव है। अगर वो वेव नहीं होती तो सूर्य से स्पेस में चलते हुए लाइट की वेलोसिटी से आ नहीं सकती थी। मगर जब आप पानी में देखते हैं तो वो झुकी हुई दिखाई पड़ती है। या आप होटलों में जाते होंगे तो हाथ लगाते हैं तो पानी आ जाता है ना। तो क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यानी जैसे ही वो आप उसकी लाइट को रोकते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन क्रिएट होकर इलेक्ट्रिसिटी बना देते। इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला था इसको, आइंस्टीन को। इसका मतलब मीडियम में लाइट पार्टिकल है और स्पेस में वेव है, जिसे वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। ये तो साइंस है। अब साइंस ने क्या कहा? अच्छा चलिए हम ये मान लेते हैं कि स्पेस में वो वेव है और मीडियम में पार्टिकल है। ये तो साइंस है। और आत्मा आकाश में अव्यक्त है और शरीर में व्यक्त है, ये बकवास है। अब ये वो साइंस है जिसे अब आप समझ पा रहे हैं। इसलिए जो जो दुनिया आगे बढ़ रही है त्यों त्यों वो उन चीजों को समझने जा रही है। और लास्ट में मैं कह दूं, एआई से आगे आ रहा है क्वांटम कंप्यूटर। और क्वांटम कंप्यूटर हमें कॉन्शियसनेस के इंटरफेस पे लेके जा रहा है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। 1972 में इंटेल की फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाले साइंटिस्ट, जिसका नाम था फेडरिको फैगिन, जो कि इटालियन ओरिजिन का अमेरिकन साइंटिस्ट है, अभी भी जीवित हैं, 84 साल के हैं। उन्होंने यह कहा है कि क्वांटम कंप्यूटर इज टेकिंग अस टू द डोर ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब कॉन्शियसनेस की बात आएगी तो एक्सपर्टीज हमारा ही है। इसलिए मैं यहां कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। भगवान कृष्ण ने पूरा गीता का उपदेश दे दिया था। उसके बाद भी अर्जुन को कॉन्फिडेंस आया था क्या? नहीं। उसने कहा महाराज वो सब तो ठीक है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम इनसे कैसे पार पाएंगे? तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था। जब विराट रूप दिखा दिया और उनका देखो ये तय है, तुम्हें सिंहासन में बैठना और इन्हें जमीन पे होना है, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि महाराज अगर ये तय ही है तो फिर आप पलक झपकाइए, ये सिंहासन में बैठे होंगे, हम जमीन पे होंगे, ये लोग जमीन पे होंगे। भगवान ने कहा तय तो है मगर मिलेगा कर्म के अनुसार। उसी प्रकार जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भारत का अमृत काल में यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, मगर करना पड़ेगा हमें अपना कर्म सही। तो भगवान कृष्ण ने जहां उंगली दिखाई थी, अपनी उंगली का हम सही प्रयोग करते रहेंगे तो भारत के भविष्य को सही दिशा प्राप्त होती रहेगी। और यह पहले से तय है, इसमें कोई वो नहीं है। सिर्फ यह पंक्ति ध्यान रखिए कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा
फिर अपना रूप संवार रही। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना अच्छा एक स्पीच दिया सुधांशु जी ने कि एक्चुअली अगर आपने उनका स्पीच सुना है तो एक चीज बहुत क्लियरली बाहर आता है कि वो कितना ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि जो महाराज जी ने कहा, जो महामन प्रभु जी ने कहा, those main points he took, he expanded on those, he connected them, और कितने अच्छे से उन्होंने कितनी माने such a variety of knowledge he has given us in such short time. So उन्होंने कितना सुंदर से समझाया कि this temple is a transmitter of consciousness, radiator, है ना, जो उन्होंने कहा शुरू में, और हमें समझाया कि कैसे जो हमारी संस्कृति है इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में कैसे कैसे जा रहा है। वेजिटेरियनिज्म ले, योगा ले, और ऑर्गेनिक फार्मिंग, कितने कितने एग्जांपल्स दिए कि कैसे हमारी संस्कृति जो हम कितना इग्नोर कर चुके हैं इतने सालों से, और हमें समझने में भी उसके लिए जो उन्होंने कहा लास्ट में, डिस्पाइट वी हैविंग ऑल द नॉलेज, हमें अपना कर्म सही करना पड़ेगा। We have to act properly, and we can only act properly when we have the right knowledge, and this is the purpose of this temple, to give the right knowledge to people. So thank you very much. Now अब हम request करेंगे